opportunity that we given in our life and मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और एक अच्छा दिन और एक अच्छा समय प्रभु हमारे जीवन में दिया सुबह से लेकर अभी तक गाने के गीतों के द्वारा प्रार्थना के द्वारा प्रभु को महिमा और स्तुति करने के लिए एक अच्छा जगह प्रभु हमारे जीवन में दिया। God gave us such a wonderful place and wonderful time to praise Him and to worship Him. So let's keep this in our mind that we are here to learn. We are here to hear from the Word of God. So before I move further, I just want to share my testimony also. पिछले हफ्ता मेरा जीवन में बहुत अच्छा था। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं सोचने से पहले, मैं करने से पहले प्रभु मेरा जीवन में सब कुछ सही समय पर देते हुए आज तक प्रभु मुझे चलाया। So this is my testimony that before I think or before I plan something, God already did everything in my life. As I always share this, this is the testimony that I have. So for today's meditation and today's study time, we will read one verse. We will read 2-3 verses from Old Testament. We will pray and then we will study together. We will learn together what God wants us to learn from this portion. So let's read together Numbers chapter 11, verses 26 to 30. गिनती का किताब अध्याय 11 उसका 26 से लेकर 30 तक। किसी ने हिंदी में बाइट के लिए आवाज उठाकर पढ़ना। गिनती 11, 26 से लेकर 30 तक। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद किसी ने हिंदी में पढ़ना। Now 2 men remained in the camp, one named Eldad and the other named Medad, and the Spirit rested on them. They were among those registered, but had not gone out to the tent. And so they prophesied in the camp. And a young man ran and told Moses, Eldad and Medad are prophesying in the camp. Verse 28. And Joshua the son of Nun, the assistant of Moses from his youth, said, My Lord Moses, stop them. But Moses said to them, Are you jealous for my sake? Would that all the Lord's people were professed, that the Lord would put His Spirit on them. And Moses and the elders of Israel returned to the camp. किसी ने हिंदी में पढ़ना। परंतु 2 मनुष्य सावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी आत्माएं ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिखे थे, और तंबू के पास न गए थे, और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। तब किसी छावनी में दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नूर का पुत्र यहोशू जो मूसा का सेवक और उसके सुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में संवाद देता। तब फिर मूसा इस्राएल के पुरनियों समेत छावनी में चला गया। भाई हम आग बंद करेंगे, आग बंद करके प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु इस सुंदर सुबह के लिए, प्रभु इस वचन से। प्रभु हम सब मिलकर सीखने वाले हैं प्रभु, इस वचन का मतलब, इस वचन का रहस्य सीखते हुए प्रभु हमारा इस जीवन में एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रभु आप हमें मदद करना। प्रभु लॉर्ड, आई वांट टू सर्व ऑल दोस हु आर सीक ओवर हियर, help us to learn together, help us to grow together in your faith. We pray in Jesus' mighty name. Amen. Once again, I greet you all in the mighty and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. As you can see the background screen, the title for today's sermon or today's meditation is Leadership Qualities, and the verse is taken from Numbers chapter 11 verses 26 to 30, and we will be focusing on 26 to 30 verses. But for a background study, we have to come from the first verse. इसका पृष्ठभूमि पढ़ने के लिए हम ये जो अध्याय है, अध्याय का पहली वचन से लेकर आएंगे। हमको पता है गिनती का किताब, उसका एक शब्द, ये पैराग्राफ में इसका सारांश बताने के लिए बोला था। इजराइल लोगों का गिनती का कहानी है, और गिनती का इतिहास की कहानी आप लोग इधर इसमें देख सकता है।
you will find out the numberings over the count, how Moses counted, or the census took place by the leadership of Moses, and that we will read and that we can study from the book of Numbers. तो गिनती की किताब में हमको टाइटल से ही हमको पता चलता है इसका अंदर का बातें क्या है करके। हम पिछले दिनों में इसके बारे में पढ़ रहे थे। हम इसको ग्रीक में अर्थमोई और ग्रीक में हिब्रू में बेम इटमार इन द विल्डरनेस या द बुक ऑफ मरमरी करके भी हम बुलाता है। So the portion which we studied today, that is अध्याय 11 अध्याय उसका हम इस अध्याय को विभाजन करके देखा तो बहुत इजी है। अध्याय 11 का 1 से लेकर 9 तक people is speaking to Moses, और we can say that लोग ने मूसा से कुछ बातें कर रहा है, वो भी बातें मतलब कंप्लेंट दे रहा। पहला भाग है अध्याय 11 का 1 से लेकर 9 तक। लोग मतलब इजराइल लोग और उनके साथ जितना लोग है, ये लोग मूसा से कुछ कंप्लेंट दे रहा है, उनका जीवन में ये कमी है करके। और वर्सेस 10 से लेकर 15 तक, अध्याय 11 का 10 से लेकर 15 तक आप लोग पढ़ के देखा तो मूसा ने परमेश्वर से बात कर रहा है, वो भी काइंड ऑफ कंप्लेंट है। मूसा भी परमेश्वर से बात कर रहा है, कंप्लेंट ही दे रहा है किसके बारे में, ये लोग के बारे में, और कुछ मदद मांगता है मूसा ने। और 16 से लेकर 30 तक हमने जो पढ़ता है, या 16 से लेकर 25 तक हमने जो पढ़ता है, इधर परमेश्वर ने मूसा से बात करता है, मूसा ने लोगों से बात करता है। मतलब पूरा अध्याय और पूरा विभाजन में बातें करना मुख्य बातें हैं, ठीक है नहीं? टॉकिंग टू गॉड, टॉकिंग टू मोसेस, एंड गॉड टॉकिंग टू मोसेस, एंड मोसेस अगेन टॉकिंग टू पीपल द पीपल ऑफ इजराइल। मैंने इसलिए इन लोगों के साथ और कुछ लोग है करके इसलिए बोला। मैंने आगे हमने इस वचन पढ़ने के समय मैंने आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो पहला भाग है इधर आप लोग पढ़ सकते हैं, the people complained in the hearing of the Lord, complained in the hearing of the Lord about their misfortunes, and when the Lord heard it, his anger was kindled, and the fire of the Lord burned among them. So ये जो पहले वचन में से आप लोग पढ़ सकते हैं, लोग कुछ बातों के ऊपर कंप्लेंट दे रहा है। And the title for our today's meditation is leadership qualities that we took from the book of Numbers chapter 11. So when people started complaining to Moses, मूसा से जब लोग कंप्लेंट देना शुरू किया, मूसा ने तुरंत उनकी विरोध या लोगों की और किसी का पास जाकर ये लोग ऐसा है ऐसा करके कुछ नहीं बोला। आप लोग सीधा देख सकते हैं मूसा ने किससे कंप्लेंट किया, गॉड से कंप्लेंट नहीं किया। क्योंकि आप लोग जब 10 वचन से लेकर पढ़ता है, मूसा ने ऐसा नाराज होकर, ऐसा इरिटेट होकर परमेश्वर से बातें करता है, मैं थोड़ी इन लोगों का नाम सुन के क्या मैं ये लोगों को मैंने डिलीवरी किया, कैसा वाला बातें करता है। उसका 11 वचन पढ़िए, 11 के 11। दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन 11 का 11 नंबर्स 11 से 11। Moses said to the Lord, why have you dealt ill with your servant, and why have I not found favor in your sight that you lay the burden of all these people on me? मूसा ऐसा प्रार्थना कर रहा है, और मूसा उतना गुस्सा, या हम मूसा के बारे में पढ़ने के समय मूसा कभी कभी गुस्सा होते थे, एक इंसान है। ये लोग पूरा ऐसा कंप्लेंट लेके आने लगा। एक कंप्लेंट लेके आने से पीछे बैकग्राउंड या इसका कहानी ये है, सब कुछ मिलने के बाद की कहानी। परमेश्वर लोगों को बुलाया, लेके चला, इस रास्ता पे साथ दूंगा करके वाचा दिया, प्रॉमिस को रिन्यू किया। सब कुछ बोलने के बाद भी, मरना खाने के बाद भी ये लोग क्या करने लगा, हमारे जीवन में ये कमी है करके फिर भी बोलने लगा। उस समय मूसा ने परमेश्वर से बात कर रहा है, ऐसा क्यों किया? उसको 12 वचन पढ़िए। क्या ये सब लोग मेरी ही कोख के पुत में? सच बताया तो मूसा ऐसा बोल रहा है, क्या इसका मैंने गर्भधारी होकर मैंने जन्म दिया क्या? मतलब मूसा कितना एक बड़ा समस्या में है करके समझना। उन्होंने उतना बड़ा बातें परमेश्वर से करना है तो किया। उसके पहला पॉइंट से, पहला जो भाग से हम पहला पॉइंट बना सकता है, द लीडरशिप क्वालिटी में फर्स्ट वन, ही वाज लिसनिंग टू द पीपल फर्स्ट। उन्होंने लोगों से सुन रहा है। कौन? मूसा। लोगों ने कितना कंप्लेंट लेके आए वो अच्छा से सुन रहा है। एंड द सेकंड वन इज, वो परमेश्वर से सब बातें बोल रहा है। और ही वाज, people were talking to Moses, and now Moses is talking to God. And the third one,
the third portion that I mentioned, that is 16 to 25. This portion को आप लोग एक शब्द में डालना है तो the heart of acceptance. हाँ, लोगों ने मूसा से कंप्लेन किया, मूसा ने परमेश्वर से जाकर बताया, when we speak to God, we should have a heart to accept what He is going to speak. जब हम परमेश्वर से बातें करता है, हमारा हृदय ऐसा तैयारी करना है, परमेश्वर जो बातें हमें करेगा वो करने के लिए। इधर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अलग अलग प्रार्थना का विषय अलग अलग बातों लेकर परमेश्वर के पास जाता है। हमारा बातें वो तो सुनना है, जब वो कुछ बातें हमको हमारे जीवन में देता है और हमसे बातें करता है, वहां सुनने के लिए क्या हो जाता है? Why? Because we expect and we pray. हमने कुछ बातों के ऊपर ऐसा एक्सपेक्ट करके प्रार्थना करता है, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही। इधर हम ऐसे देख सकते हैं, मूसा ने ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं किया, इसलिए जब परमेश्वर ने मूसा से कुछ बातें बोला, मूसा ने ऐसा बोल रहा था, परमेश्वर इतना बड़ा झुंड को चलाने के लिए मैं अकेला हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं बताया। that is there in verse 14, 14 वचन पढ़िए, 14. I am not able to carry all these people alone. This burden is too heavy for me. मूसा ने बोल के बताया, परमेश्वर इतना लोगों को लेके चलना मुझसे नहीं हो रहा है, मैं बहुत बर्डन, मतलब बहुत भारी है मेरे जीवन में है। परमेश्वर वो प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने इनका हालत को समझ लिया, इसलिए परमेश्वर ने 15 वचन में बोला, 16 वचन से बोला, अभी क्या करना है, कुछ अगुआ लोगों को तुम्हें, you have to select few elders, gather for me 70 men of the elders of Israel. परमेश्वर ने क्या बोला, मेरे लिए कितने लोग चुनना? 70। ये एल्डर्स को चुनने की कहानी जब हम पुराने नियम में जाकर पढ़ेंगे, उनका काम करने का और एबिलिटीज होता है, उनके अनुसार, उनके बुद्धि और ज्ञान के अनुसार ही झुंड में से लीडर लोगों को, एल्डर लोगों को, बड़े लोगों को चुना जाएगा। उनका बुद्धि के अनुसार वो कैसा काम को चलाता है, कैसा बातें करता है, उसकी अनुसार ही चुना जाएगा। उसकी 17 वचन, एंड आई विल कम डाउन एंड टॉक विद देयर, परमेश्वर ने बोला इन लोगों को मेरे लिए चुना है। इंग्लिश में लिखा है गैदर फॉर मी, हिंदी में क्या लिखा? 16 वचन पढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठा कर। मेरे पास इकट्ठा करना मतलब गैदर फॉर मी, दे आर नॉट फॉर यू। मूसा ऑलरेडी एक लीडर है, मूसा के हाथों में एक अधिकार है लोगों को चलाने के लिए। परमेश्वर ने मूसा से बहुत अच्छा से बोला, गैदर फॉर मी। एक लीडर होने के नाते कभी कभी हमको भी कोई जिम्मेदारी या कुछ दिया था, हमारा एक आदत हो जाता है गैदरिंग फॉर अस। इधर परमेश्वर ने मूसा से बहुत अच्छे से बताया, गैदर फॉर मी, मतलब मूसा को बहुत अच्छा तरीके से परमेश्वर ने बोला, ये 70 लोगों को तू चुन रहा है, किसके लिए? मूसा ने प्रार्थना किया था, परमेश्वर मेरे लिए लोगों का जरूरत है, मेरे लिए मदद का जरूरत है, मैं अकेला नहीं। परमेश्वर का उत्तर कैसे आया? मेरे लिए चुनना। मूसा का प्रार्थना था, परमेश्वर मेरे लिए जरूरत है, परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया? मेरे लिए तू चुनना। आगे पढ़िए 18 वचन। और लोगों से कहो, कल के लिए अपने को पवित्र करो। गैदर फॉर मी, एंड कल के लिए कॉन्सिक्रेशन। मैंने बोला था कॉन्सिक्रेशन का मतलब क्या है? तैयारी होना है, कुछ काम, कुछ सेवकाई में और कुछ काम करने से पहले देयर इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्सिक्रेशन, तैयारी करना। उसके बाद पढ़ेंगे आगे आते आते 20 वचन। परमेश्वर ने मूसा से बोला, मैंने इन लोगों का आपका प्रार्थना भी सुन लिया हूँ, ये जो लोगों ने प्रार्थना कर रहा है वो भी, लोगों ने क्या प्रार्थना किया? ऑलरेडी मन्ना खाते हुए, खाना खाते हुए, ऑलरेडी गॉड्स प्रोविजन दे आर एंजॉयिंग, एट द सेम टाइम दे आर complaining that we need something more, craving or craving, not craving, craving मतलब है, ऑलरेडी जरूरत के अनुसार है, फिर भी चाहत, मुझे और चाहिए, जरूरी नहीं है, चाहत और चाहिए। और वो लोग ऐसा भी बोलने लगा, हम जब इजिप्ट में था, वो उसका 11वां अध्याय का 4वें वचन से पढ़ के देखना, जब हम इजिप्ट में था हमको मछली मिलते थे, हमको क्या क्या मिलते थे? उसका 5वां वचन पढ़िए। We remember the fish we ate in Egypt, that cost nothing, the cucumber, the melons, the leeks, वो लोग परमेश्वर का एक अच्छा प्रोविजन को एंजॉय या वो आशीर्वाद में जीने का समय ही, और पुराना जीवन में जो जो बातें कर रहा है उनके बारे में फिर याद। जब इजिप्ट देश से लोगों को परमेश्वर लेके आगे चला, परमेश्वर क्या याद रखने के लिए बोला?
और कुछ कुछ अध्याय में हम पढ़ सकता है। क्या याद करने के लिए मूसा से भी परमेश्वर ने बोला, मेरा जो प्रोविजन, मैंने तुम लोगों को कैसा चलाया, बीते दिनों में कैसा लेकर आज तक लेके आया, इस बातों को याद करना। लोग क्या याद कर रहे थे? The fish we ate in the Egypt, but they forgot। वो खाना खाने के समय उनका हालत कैसे था, प्रार्थना कौन किया, ये सब बातें वो लोग भूल गया। अभी उनकी चाहत के अनुसार their wants are not getting fulfilled। wants and needs are both different। needs मतलब वो हमारा जरूरत है। उदाहरण के लिए अभी कपड़ा पहनना हमारा वांट्स नहीं, हमारा नीड है, क्योंकि हमारा नंगेपन को कवर करना है तो कपड़ा की जरूरत है। वांट्स और नीड्स आर बोथ डिफरेंट। दे आर अगेन वांटिंग दैट। परमेश्वर हमको वहां तो मछली मिलते थे, कुकुम्बर मिलते थे, लेमन मिलते थे, और क्या क्या है, लीक्स मिलते थे, गार्लिक मिलते थे, ओनियंस मिलते थे। अभी ये कुछ भी नहीं है। क्या है? मन्ना तो है, फिर भी पुराना बातों को बहुत अच्छा से याद रखा है। इसलिए मूसा भी बोला, इस सब लोगों को मेरा ऊपर क्यों डाला परमेश्वर? अभी भी क्या याद कर रहा है? ये पहली बार नहीं है। वो लोग वहां से निकल के आने का समय से 3 बार कंप्लेन किया, 3 बार। और निर्गमन की किताब अध्याय 16 में एक बार कंप्लेन किया। एक्सोडस चैप्टर 16 दे कंप्लेन, एंड नंबर्स चैप्टर 11 दे कंप्लेन, एंड नंबर्स चैप्टर 21 दे कंप्लेन। All this complaint, they are already enjoying the blessing, that they are already in the provision of God, and again they are thinking about, again they need something, craving। इंग्लिश में बोलते हैं craving। craving का शब्द आप लोगों को समझ आना है तो 34 वचन पढ़िए, 11 का 34। Therefore, the name of that place was called इंग्लिश में हिंदी में पढ़ना, क्योंकि craving करके शब्द का हिंदी पढ़ेंगे। और उस स्थान का नाम किब्रोत का बड़ा, और क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। क्या थी करके लिखा? मतलब और चाहत है इन लोगों का। बात ये है, if we are also craving, we will also feel the experience of किब्रोत हटावा। किब्रोत हटावा का नाम हम लास्ट में पढ़ेंगे। इधर बात ये है, ये लोग फिर क्रेविंग है परमेश्वर की मन्ना को खाने के बाद भी। अगर हम मन्ना के बारे में बात करना है तो कभी कभी हम प्रार्थना करता है, प्रार्थना को उत्तर मिलने का समय हम सोचता है दिस इज जस्ट एन रिप्लाई फ्रॉम गॉड। जब हम मन्ना के बारे में पढ़ के देखेंगे, निर्गमन की पत्री 16 का 6 में लिखा है, उन लोगों को खाना क्या दिया था परमेश्वर? मन्ना। दिस वाज टू टेस्ट हिम। ये उन लोगों का ओबीडियंस को परख कर देखने के लिए था। जब हम प्रार्थना करता है कुछ पाता है ना, इसका दूसरी मतलब आत्मिक रूप से इसका मतलब आशीर्वाद का मतलब क्या होगा? दैट इज टू टेस्ट माय ओबीडियंस। में कैसा परमेश्वर को आज्ञा को मानता हूं, हाउ आई विल ओबे हिम। सो ये मन्ना के बारे में ज्यादा पढ़ाई किया था, आप लोग देख सकते हो। वो मन्ना इतना टेस्टी था जैसा आजकल हमारा वो जो होता है ना डोनट्स, राउंड राउंड होता है, ऐसा वाला टेस्टी चीज था करके है। सो द थिंग इज ऑलरेडी दे गॉट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, बट अगेन दे आर क्रेविंग, और अगेन दे आर इन देयर वांट्स। सो दैट इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड, दैट इज देयर कंप्लेंट। हमारा चाहत के अनुसार हमको नहीं मिल रहा है, ये कंप्लेंट। What they are about, what they are complaining. According to their desires, they are not getting food. But according to their need, they are getting। समझ गया? नीड का डिजायर का मतलब, वांट का मतलब का डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? Yes, sir. चाहत अलग होता है, जरूरत अलग होता है। उनका जरूरत के अनुसार परमेश्वर उनको दे रहा है, फिर भी उनका चाहत के उत्तर उन लोगों ने नहीं। अगर हम हमारे जीवन में देख के सोच के देखा तो आज मेनी टाइम्स यही है ना हमारा भी हालत। हमारा चाहत के अनुसार हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए हम थोड़ा नाराज है। फिर भी हमारे जरूरत के अनुसार परमेश्वर हमको सब कुछ है। क्या होगा करके वचन की सत्य का अंत में लिखा, किब्रोत हटाओ, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो ये लोग परमेश्वर मूसा से कंप्लेन किया, मूसा ने परमेश्वर से कंप्लेन किया। मूसा ने अभी परमेश्वर की आज्ञा को मानकर कितना लोगों को चुना है? 70। रीड वर्स 23। And the Lord said to Moses, Is the Lord's hand shortened? अभी मूसा से परमेश्वर ने ये भी बोला, इन लोगों को जरूरत के अनुसार खाना मैंने दूंगा। अभी मूसा का डाउट ये है, अभी हमारा बीच में जितना भाई बकरे सब कुछ है, मैंने उसको काट के दिया तो भी 1 महीना भी इन लोगों को खाना नहीं
तब परमेश्वर ने मूसा से पूछा, वचन 23 पढ़िए, क्या पूछा? यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया? इसने किससे पूछ रहा है? एक लीडर से परमेश्वर ने पूछ रहा है, क्या मेरा हाथ? मतलब लोगों का कंप्लेंट सुनते 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 मूसा भी कैसा हो गया? अभी परमेश्वर देगा क्या, एक डाउट में है, इसलिए बोला। उसका ऊपर वाला वचन पढ़ के देखना, मैंने वहां का भाई बकरे को काट के दिया तो भी ये काफी होगा क्या परमेश्वर? तब परमेश्वर ने बोला, तू ऐसा क्यों बातें करता है, मेरा हाथ थोड़ा छोटा हो गया। पहले कौन खिलाया था? So the context is at times even Moses also forgot the ability of God. परमेश्वर ने कैसा संभाला था करके मूसा भी उतना बड़ा टेंशन में था। और आगे बढ़िए 26 है। अभी आज हमने जो वचन सुना इसको फ्रीज करके रखेंगे। परंतु दो मनुष्य छावनी में रह गए, जिनमें एक का नाम एदाद और दूसरे का नाम बेदार। अभी इधर कॉन्टेक्स्ट या चरित्र ऐसा हमें बताता है, 70 लोगों को इकट्ठा कर टेंट का अंदर लेके आने के लिए बोला, टैबरनेकल का अंदर लेके आने के लिए बोला, और निवास स्थान का अंदर लेके आया। उन लोगों से परमेश्वर ने बातें किया। Moses prayed, and when I said the third portion, that is acceptance, a heart of accepting, मूसा से परमेश्वर ने एक बात बोला था, तेरा शरीर में और तेरा अंदर जो आत्मा है उससे थोड़ा आत्मा लेकर मैंने इस चुने हुए लोगों को क्या करता हूं। वो वचन पढ़िए 17, and I will come down and talk with you there, and I will take some of the spirit that is on you and put it on them. मूसा से परमेश्वर ने बोला, तेरा प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने कैसे दिया? पहले gather for me, and the second one was, I will talk to you when you are inside the tent, but I will take the spirit from you, not fully. I will take some of the spirit करके लिखा है। I will take some of the spirit that is on you and put it on them. मैंने तुझमें से कुछ तेरा आदत को, तेरा एबिलिटीज को, तेरा गुण को, तेरा क्वालिटीज को कुछ लेकर, एक क्वालिटी सब कुछ परमेश्वर से आत्मा से ही मूसा को भी मिला, उसमें से कुछ बातों को लेकर मैंने इन लोगों को दूंगा। अभी मूसा को अगर हम उस जगह पे तो हमको कैसा लगा वो? अरे मेरा नाम थोड़ा बड़ा होगा करके सोचा था, अभी कैसे चल रहे? प्रार्थना का उत्तर भी कैसे आया? गैदर फॉर मी, एंड द सेकंड वन वाज, तुझमें जो बातें हैं उसमें से थोड़ा बातें लेकर मैंने इन लोगों को भी देता हूं। ये सिर्फ पुराने नियम में बातें नहीं है, नया नियम में भी आप लोग पढ़ सकता है। लूका अध्याय 9 में हम पढ़ेंगे। इधर मूसा ने वो बात भी मान लिया। अभी इधर आते आते ये 70 लोगों को परमेश्वर के आत्मा का वरदान से लोग भविष्यवाणी करना शुरू किया। ये लोग अभी कहाँ हैं? इनसाइड द टेंट, टैबरनेकल, परमेश्वर का निवास स्थान में। बट उसका 25 वचन का लास्ट वचन पढ़ के देखिए, and as soon as the spirit rested on them they prophesied. जब पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर आया, वो लोग क्या करना शुरू किया? भविष्यवाणी करना शुरू किया। उसके बाद क्या हो गया? बट दे डिड नॉट कंटिन्यू डूइंग इट। उसके बाद वो लोग करना, वही काम करना आगे नहीं, वो लोग आगे नहीं किया। बट इधर हम देख सकता है अगेन इन द हार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस का गहराई से हम देखा तो ये आजकल हमारे बीच में सुलेमान सर भी बैठा है, और हम सब आने वाले दिनों में लीडर बनने के लिए जा रहा है। आप लोग भी लीडर। When we speak about leader, don't think that you will be standing front and you will get many followers back. This is not the meaning of leadership in Bible. समझ गए? हम पढ़े थे लीडरशिप का और अगुवा का मतलब क्या है करके पिछले क्लास में पढ़ा था। क्या है? The one who leads. आपका पीछे लोग होने की जरूरत नहीं है, but you have to lead. First you have to lead yourself, then you have to lead the people of God. And if you lead yourself, for sure people will follow you. That is what Jesus taught us. अगर हमारा जीवन को हम एक अच्छा तरीका में, एक अच्छा एग्जाम्पल में लीडिंग किया तो ये कहावत है इंग्लिश में, एवरीवन विल स्पीक अबाउट एग्जाम्पल बट नो वन वांट टू बिकम एन एग्जाम्पल। आप लोग सुना होगा, बहुत लोग उदाहरण के बारे में बताता है, कोई किसी का भी उदाहरण बनना नहीं चाहता था। मैं मुझको भी इंक्लूड करके बता रहा है सब बातें। मैंने स्पीक अबाउट लीडर, आई नो मैं और आप और हर एक व्यक्ति एक लीडर है, या क्या पर और कहां पे। परमेश्वर कुछ लोगों को अलग चुनकर लीडरशिप देता है, जब लोग सब स्टडी। सो मूसा को इधर एक अलग लीडरशिप मिला,
उनको मदद चाहिए करके मूसा ने प्रार्थना किया। मूसा से परमेश्वर ने बोला गैदर फॉर मी एंड आई विल टेक सम ऑफ द स्पिरिट फ्रॉम यू एंड आई विल गिव टू। अब दो बातों मूसा ने अभी एक्सेप्ट किया। ये दो बातों की जगह पर हमको डाल के देगा तो हम कैसे बोलते? हमको मिलना तो है, फिर भी हमारा कुछ जाना पसंद नहीं करना, ऐसा ही है ना। अभी मलयालम में एक कहावत है, उसके हिंदी में मुझे क्या है पता नहीं, तो मैं नहीं बताना चाहता, वो मुझे याद तो आया। हमको मिलना तो है प्रार्थना का उत्तर, फिर भी हमारा कुछ लेके दिया तो वो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आकर हमसे बोला हमको कुछ जरूरत है हमारे लिए प्रार्थना करना करके, हम लोग प्रार्थना के लिए बैठा, परमेश्वर हमसे बातें किया, तेरा वो जो है ना तेरा हाथों में, उसको बेचकर उनका काम करवाना। कितने लोग वो आवाज को परमेश्वर का आवाज है करके मानता है? हम सोचता है ये थोड़ा सा गड़बड़ है, और एक बार प्रार्थना करके देखेंगे, फिर भी वही आवाज सुनाई दिया। तो इधर मूसा से परमेश्वर ने बहुत क्लियरली बताया गैदर फॉर मी एंड आई विल टेक सम ऑफ द स्पिरिट एंड आई विल गिव टू देम। मतलब अभी मूसा के समय वो कितने लोग आने लगा, आता है वहां 70, but they did not do that, they did not continue that. In that case, ये इधर मैंने बहुत बातें सीखा। हमेशा हम सोचता है हमारा कुछ सोच होता है इधर ही और यही लोग ही परमेश्वर का काम करेगा, इन लोग ही परमेश्वर से बातें कर सकता है, इन लोगों से ही परमेश्वर बातें करेगा करके हम सोचता है। इधर दो लोगों का नाम हमने पढ़ा, एल्दाद एंड मेदाद। एल्दाद का नाम का मीनिंग है लाउड बाय गॉड और गॉड हैज लाउड। एल्दाद करके जो हिब्रू नाम है ना, उसका दो शब्द से आया, एल प्लस दाद। एल मीन्स गॉड, दाद मीन्स लाउड। सो एल्दाद मीन्स लाउड बाय गॉड और गॉड हैज लाउड। एंड द सेकंड वर्ड इज मेदाद। इट आल्सो कम्स फ्रॉम टू डिफरेंट वर्ड्स, मे प्लस दाद। मे मीन्स लव, सो व्हिच मीन्स बिलव। सो एल्दाद एंड मेदाद, दोस वर नॉट इनसाइड ऑफ द टेंट, वेयर they were in the camp। टेंट अलग है, कैंप अलग है। टेंट मतलब वो कैंप, मतलब ये लोग कहाँ बसा करते थे, वहां से एक अलग जगह टाबरनाकल बनाए थे। मतलब टेंट में जो लोग था वो लोग भविष्यवाणी करते, वो लोग का रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। इधर कैंप में जो लोग है, कौन कौन है? एल्दाद एंड ये लोग क्या करने लगा? भविष्यवाणी करने लगा। आगे वचन पढ़िए उसका 27-28। Your friend went out to tell Moses what Eldad and Medad were doing. Then जोशुआ son of Nun। हम पहला ये जोशुआ का नाम हम एक्सोडस चैप्टर 17 में पढ़ता है। अमेरिकियस के साथ जाकर युद्ध लड़ने के लिए जाने का समय यहोशू का नाम पढ़ता है। दूसरी बार आप लोग पढ़ा है अभी इधर यहोशू का एक हम हमारा मन के अनुसार सोच के देखा था, यहोशू एक अच्छा लीडर अगवा करके हम सोच के रखा है। इधर यहोशू ने एल्दाद और मेदाद दोनों भविष्यवाणी करते हुए देखा। कहाँ भविष्यवाणी कर रहे लोग? कैंप में, झुंड में, टेंट में नहीं, झुंड में। यहोशू ने भाग के आकर, क्योंकि मूसा का कौन है? यहोशू असिस्टेंट है। भाग के आकर अगुआ से बताया, मूसा जी देखना वो लोग वहां भविष्यवाणी कर रहा है। तब मूसा ने क्या पूछा? क्या तू मेरी बारे में सोचकर जलन हो क्या आया है क्या? वही पूछा ना। पढ़िए 28। And Joshua the son of Nun, the assistant of Moses from his youth। वहां लिखा है वो यूथ में था। उनका यूथ में हमारा भी हालत, हमारा कैरेक्टर कैसा होता है वहां बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। इसलिए लिखा फ्रॉम हिज यूथ। वो यूथ का हालत में जवान होने के नाते क्या किया? said, my lord Moses, stop them। But Moses said to him, are you jealous for my sake? क्या लिखा वहां 28-29 में? मूसा ने उससे कहा क्या तुम मेरे कारण जलते हुए तो आया? कि अभी जलन होने का रीजन क्या है? मेरी जैसा दो लोग कहां से भविष्यवाणी कर रहे हैं, परमेश्वर का काम कहां से कर रहे हैं? अभी मेरे लिए भी ये डेंजर है, मेरा लीडर के लिए भी ये कौन सोचा? यहोशू ने सोचा। अब मैंने पिछले दिनों से आपको से बात किया था, नेपोटिज्म करके एक बात है करके, हम होगा तो हमारा ही होना है करके एक नियम इंडिया में नहीं, बहुत जगह पर है। मैं है तो मेरा बेटा ही लीडर बनेगा, उसको कोई क्वालिटी कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला हम सोचते हैं कुछ लोग यही लीडर बनना है, यही प्रार्थना करना है, यही परमेश्वर का काम करना है। दैट्स व्हाट वी थिंक, दैट इज आवर डिजायर। द सेम वे जोशुआ वाज थिंकिंग। यहोशू ने सोच रहा था
अभी ये दोनों आगे बढ़ के गया तो कैसा हो गया, इसके बाद क्या अगर मूसा से बोला, बट द रिप्लाई फ्रॉम मोसेस वाज वेरी पोलाइट, नम्र करके उन्होंने उत्तर दिया, हाँ तू जवान होने के नाते ऐसा होता है, फिर भी क्या बोला, मेरी कारण जन्म होने का जरूरत। उसके बारे में उसके बाद मूसा ने क्या पूछा, would that all the Lord's people were prophets, that the Lord would put his spirit on them। मूसा ने बोला क्या परमेश्वर का सारे लोग भविष्यवक्ता हो गए क्या, भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं क्या। उसके बाद 30वां वचन, and Moses and the elders of Israel returned to the camp, and the meaning of the message of this portion is, if you remain the people will return। very easily you can understand, आप लोग परमेश्वर को जानने के बाद आप लोग बने रहना चाहते तो ये दो लोग क्या किया करके लिखा हुआ। Now the two men remained in the camp, one named Eldad and other named Medad। इधर मैंने remain करके शब्द को देखा, दूसरे कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग दिया, ये लोग कैंप में ही बने रहा। अगर पवित्र आत्मा इनका ऊपर आना है तो उनका जीवन सीधा साधा अच्छा से होना है। वो झुंड में से ही लोग क्या किया था, कंप्लेन लेके, वही झुंड में से परमेश्वर दो लोगों ने क्या किया, मतलब जब हम झुंड को पूरा करके, हम पूरा का पूरा झुंड को पूरा करके हम नहीं मान सकते, मतलब झुंड के अंदर भी कुछ अच्छा लोग था। मे बी दिस टू वर साइलेंट, वो लोग परमेश्वर का प्रोविजन को, बातों को याद करते हुए ही झुंड में था। अभी उनका ऊपर पवित्र आत्मा आया, उन्होंने बात करने लगा। दिस इज व्हाट द हार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, व्हेन वी प्रे एंड व्हेन वी रिसीव, वी शुड एक्सेप्ट as we receive। जब मूसा ने प्रार्थना किया, लोगों का जरूरत मेरा जीवन में है, परमेश्वर ने क्या बोला, मेरे लिए चुनना। सेकंड बात परमेश्वर ने बोला, तेरा ऊपर जो आदत और तेरा एबिलिटी और गुण सब कुछ मैंने दिया मेरी पवित्र आत्मा से, उसमें से कुछ लेकर। अभी वो लोग भी नहीं रुक पाया। मेरा डाउट ये था, ये 70 लोगों में से 2 लोग तो नहीं है लोग, क्योंकि 70 लोग मंदिर का टैबरनेकल का अंदर आया, वो लोग नहीं कर पाया। ये लोग कैंप का अंदर से 2 लोगों का कहानी निकाला। So the third portion was, and coming back to the first portion of this chapter, हम पीछे आएंगे, उसका पहला अध्याय, कौन किससे कंप्लेंट दे रहा था, इजराइल लोग मूसा से। अच्छा माना जाता है ये बड़ा क्राउड है करके लिखा है वहां। वो क्राउड का अंदर जब 10 विपत्ति आया था इजिप्ट देश में, जो मिस्र लोगों से बीच में से परिवार लोग भी, वो लोग भी परमेश्वर से डरा था, क्योंकि अब वहां बाइबल में पढ़ता है बहुत लोग का इच्छा था इस परमेश्वर से प्रार्थना करना। कुछ लोग आके बोला था ना इस्राएल लोगों से, तुम लोगों का परमेश्वर बहुत महान है, तुम लोग इधर से निकल ही जाना हो हमारे लिए। ऐसा माना जाता है चरित्र में, कुछ लोग इन लोगों का पीछे था। इसलिए जब रिफ्यूजीज करके हम पढ़ते हैं ना, कनान का देश में जाने के समय जो लोग बाहर से इन लोगों के बीच में जुड़ा था, इन लोगों के लिए अलग जगह दिया करके हम पढ़ा था 2 दिन पहले। सो एवरीवन, वो लोग मूसा से कंप्लेन किया, मूसा ने परमेश्वर से बोला, मूसा को परमेश्वर ने उत्तर दिया। वो उत्तर था द हार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस में हम लेने का जरूरत है। व्हेन वी प्रे, व्हेन वी थिंक, वी शुड also accept what God is speaking to us। I hope you understood the entire context। समझ लिया। अब ये पढ़ेंगे लूका से रचित सुसमाचार अध्याय 9 का 49 से लेकर 55 तक। सेम काइंड ऑफ कहानी है। अभी हम पुराने ये चरित्र है जो मैं कहानी करके बताता हूँ, अब समझने के लिए नरेटिव वे में बताता हूँ, बट दिस इज ट्रू एंड दिस इज द ट्रूथ। तो लूका से सुसमाचार अध्याय 9 का 49 से लेकर पढ़ना। जब यीशु मसीह उनका चेला लोगों के साथ था, जब ये लोग सेवकाई में था, तब ऐसा वाला एक संदर्भ हुआ। यीशु मसीह का चेले लोग, जैसे जोशुआ ने वाक्य आकर मूसा से बताया, यीशु मसीह के पास आकर यूहन्ना ने बताया। पढ़िए। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा, और हमने उसे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं बोलेगा। यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरुद्ध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। तो आप लोग मरकुस से समाचार में भी पढ़ सकता है। इधर यीशु मसीह जब सेवकाई में था, यीशु मसीह के चेला लोग यीशु मसीह के पीछे ही था। यीशु मसीह के चेला लोगों की मेंटालिटी हम सोचा तो हम यीशु मसीह के पीछे है, कुछ करना है तो हम ही। इसलिए जो लोग इस झुंड में 12 लोगों के झुंड में नहीं था, वो लोग कुछ चमत्कार बातें कर रहा था। किसके नाम पर? अभी जोशुआ जैसा मूसा के पास आया,
वैसे ही यीशु मसीह के चेला लोग यीशु मसीह के पास आए ना, वहां नाम लिखा है जॉन. John answered, Master, we saw someone casting out demons in your name and we tried to stop him. यूहन्ना ने क्या बताया? He tried to stop him. आपकी नाम पर किसी ने क्या कर दिया था वहां? दुष्ट आत्मा को निकालते हुए मैंने देखा. और वी लिखा है, इसलिए मैंने बोला पूरे झुंड था, सब लोग मिलकर बोला हाँ हाँ हमने देखा. एंड वी ट्राई टू. यीशु मसीह ने उत्तर कैसे दिया? जैसा मूसा ने वहां उत्तर दिया, इधर यीशु मसीह ने क्या बोला? 50. We tried to stop him. उन लोग का रोकने का रीजन नहीं बताया. Because he does not follow with us. वो लोग जो कर रहा था ना, वो हमारी समान हमारा पीछे नहीं आया था. हम कौन है? हम कौन है? हम मतलब इधर मैंने चेलों की बातें पूछ रहा हूँ. हम बड़ा लीडर यीशु मसीह जो चमत्कार करता है उनके पीछे बोलने वाला लीडर से हम भी. उन्होंने हमें बताया था आने वाला दिनों में तुम लोग ही लीडर 12 गोत्र और 12 शिष्य. इसलिए ये लोग सोचा ये लोग हमारे ये बंदा जो हमारा पीछे नहीं आया था. यीशु मसीह ने उत्तर क्या दिया? एंड जीसस सेड टू हिम, डू नॉट स्टॉप हिम, फॉर द वन हु इज नॉट अगेंस्ट यू इज फॉर यू. हिंदी में पढ़िए. यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा उसे मना मत करो. उसे मना मत करो. मूसा भी क्या बोला था यीशु से? क्या इतना बड़ा झुंड है, सब लोग भविष्यवक्ता लोग हैं क्या? इतना बड़ा झुंड है, सब लोग चंगाई दे रहे क्या मेरा नाम पर? अगर यीशु मसीह मूसा का समान पूछा तो कैसा होगा करके मैंने बताया. आगे पढ़िए. क्योंकि जो तुम्हारे विरुद्ध में है नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे विरुद्ध में नहीं वह तुम्हारी ओर है. अगर वो लोग हमारा विरुद्ध नहीं है तो कोई डरने की जरूरत नहीं. वो भी यीशु मसीह का नाम पे काम किया तो करने दो. बट इसलिए मैंने बोला हार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस. हमारे झुंड में से ही होना है करके बहुत लोग सोचते हैं. हम डिनोमिनेशन के बारे में पढ़ने के समय भी ये बहुत बातें हम डिस्कशन किया था. ये नहीं किया, आप लोगों को याद ही होगा, याद जरूर होगा. Every denomination is holding on some of the doctrines and they are thinking that it is only possible for them. But comparing the Old Testament events and the New Testament events, what Jesus said, what Moses said, इतना बड़ा झुंड है, इन लोगों से नहीं हो पाया. अगर किसी ने किया तो तुम लोग क्या कर रहे हैं? There is a big public among them. All of them are not doing this kind of thing. Few of them are doing, and what the others are doing, bringing the complaints. So in the Old Testament, the portion which we studied today, आज हमने जो वचन पढ़ा वहां 3 तरीका का कंप्लेन हम देख सकते हैं. पहला, लोग उनकी चाहत के अनुसार मूसा के पास आकर कंप्लेन दिया. दूसरा, मूसा ने उनका नीड के अनुसार जाकर परमेश्वर से बोला. जोशुआ ने भी कंप्लेन लेके आया. डेंजर जोन में उन लोगों को देखा था, इसलिए यहोशू किसके पास कंप्लेन लेके आया? So how many types of complaints are there? 3. लोग मूसा से कंप्लेन दिया. That was complaining out of own desire. अपना सोच विचार के अनुसार काम नहीं हुआ इसलिए कंप्लेन किया. मूसा का तो जरूरत था, परमेश्वर आई नीड, परमेश्वर है मुझे जरूरत है करके प्रार्थना किया. उत्तर कैसे आया? उत्तर कैसे आया? मेरे लिए करना, मैं करूंगा, तू जस्ट जो मैं बोलता हूं वो ही करना. एंड द थर्ड वन, यहोशू ने कंप्लेन लेके आया. यहोशू का कंप्लेन कैसे हो रहा था? कंप्लेनिंग आउट ऑफ जेलसी. वहां लिखा है ना, मूसा ने सीधा बोला, आर यू जेलस बिकॉज ऑफ मी? उन्होंने थोड़ा जलन हुआ, मेरी समान यूथ है वो भी, वो क्या करने लगा, मुझसे नहीं हो रहा है. यहोशू को भी कौन सुना था? You know, in Old Testament book of Pentateuch, there is a separate version for introduction of Joshua. यहोशू का परिचय देने के लिए पूरा का पूरा प्रचार किया था. कौन? मूसा ने. सब कुछ है, फिर भी तुरंत मूसा ने उनके चेलों को बहुत अच्छा से समझाया, ऐसा वाले कैरेक्टर हमारे जीवन में होने की जरूरत नहीं है. अगर वो लोग करना चाहते तो, अगर वो लोग कर रहा तो क्या करना, करने दो. उसके बाद मैंने बोला, सबसे लास्ट मैंने बोला था, इसके बाद हम आज का चिंता को हम समाप्त करेंगे. इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ डिजायर and if we are praying out of our own desires and our own wants, उत्तर कैसे होगा और फ्यूचर में क्या होगा? इसलिए मैंने बोला हमारे जीवन में भी एक किब्रोत हटावा का एक अनुभव आएगा.
we will also face and we will also go through such kind of an experience, that is Kibroth Hatava. The meaning of Kibroth Hatava is graves of graves. Graving. ग्रेव मतलब हमारा सोच, हमारा चिंता, हमारा लालच, ये सब आते 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 हमारा जीवन ऐसा एक स्मशान बन जाएगा। मेरा इच्छा के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी मैंने इस यीशु मसीह का नाम लेना भी है। अभी समझ लिया वो शब्द का मीनिंग, अनुभव कैसा हमारे जीवन में आएगा। वहां लोग को इतना मिलने के बाद भी फिर भी ये लोग फिर भी उनका डिजायर के लिए सोचने लगा। तब वहां लिखा है बहुत लोगों को मार डाला, बहुत लोगों को मृत्यु हो गया। वो जगह का नाम क्या दिया, उसका वचन पढ़िए 33 से लेकर पढ़िए हिंदी में। किसी का आपका बिल्कुल नहीं 11 का 33 से लेकर 11:33। मांस उनके मुंह में था, मांस उनके मुंह में था और वे उसे खा न पाए थे कि यहोवा का क्रोध उन पर भड़क उठा। और while the meat was yet between their teeth, वो लोग उनकी चाहत के अनुसार पूछा, परमेश्वर ने दिया। जब वो लोग खा रहा था, टीथ मतलब दांत के खाने का बीच में क्या हो गया वहां सबको। and the place, the name of that place is Kibroth Hatava, graves of the craving। और ऐसा वाला जो लोग होते हैं ना, मसीह को मैंने इसलिए जाना, मुझे और मिलना है और मिलना है और मिलना है, नॉट अकॉर्डिंग टू माई नीड बट अकॉर्डिंग टू माई वांट्स। अभी समझ लिया, मेरी जरूरतों के अनुसार देने वाला परमेश्वर हमारा साथ है। कल हमने शाम को सुने थे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कड़ी नहीं, एक कड़ी नहीं होगी करके बोलने के समय आंख बंद करके दिल के अंदर से एक बार सोच के देखना, कुछ प्रार्थना मेरा अभी भी उत्तर मिलने के लिए पेंडिंग में है नहीं। वहां से सोचना, ये प्रार्थना मेरा नीड है या मेरा वांट है। आप लोग ये सोचते हैं हमेशा घुमा के वहां शादी को वहां लेके आते करके, आप शादी के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं, इतने लोग नहीं कर रहे शादी के लिए प्रार्थना, सब लोग करता है। इफ इट इज योर नीड, परमेश्वर ने वो सही समय में, एंड इफ इट इज योर वांट, कुछ लोग प्रार्थना की जाते हमारे बीच में, क्या हुआ करके भी हम देखा। देयर आर मेनी केम हियर, देयर ओनली द उद्देश्य, द पर्पस ऑफ देयर फास्टिंग वर मैरिज। Actually, they are not in a situation to get married, but the purpose of their fasting prayer was marriage. हम बहुत लोगों के जीवन में देखा, and in the end we saw ऐसा वाला एक समय हो गया और ऐसा वाला एक कॉन्डक्ट हो गया, kind of graveyard। वो चाहत भी है, नहीं भी हुआ और भी हुआ। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग समझ लिया होगा। ऐसा एक बलून का जीवन हो गया, उसको छोड़ना भी मन नहीं हो रहा है, उसका लेना भी मन नहीं हो रहा है, दोनों के बीच में। That is what graveyard means. We want to do, but we are not able to do because that was our want. मैं आशा करता हूँ आज की इस छोटी सी मरम का आप लोग बहुत अच्छे से समझ लिया। वचन के साथ मैंने बोला, and if there is any mistake, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है? Because I also learned many things from this. We all are going to become leaders. And one after your studies or after your पढ़ाई के बाद आप लोग जाकर कहाँ भी अगुवाई करने के समय, we should keep this in our mind. When you pray for something, God will reply. But accept it as He is replying. मूसा को जरूरत था लोगों को इकट्ठा करने का, अभी वो 70 लोग भी नहीं मिला। कितने लोगों को मिला होगा मूसा को? वो 2 लोग भी कहाँ से मिला? टेंट के अंदर से नहीं, कैंप बाहर से। So if you expect something in that way, इधर से ही मिलेगा, वहां से नहीं मिलेगा, क्या होगा? Later you will find out the life of Moses. किससे शादी किया था? मूसा के जीवन में एक शादी का कहानी है। दूसरी बार जो शादी हुआ था, किससे शादी किया? वो शादी करने से आरोन को भी पसंद नहीं आया, इसका बहन को भी पसंद नहीं आया। किसको पसंद आया था? परमेश्वर को भी पसंद आया था। मूसा को भी बहुत अच्छा से पता था, इससे शादी करने से मेरे जीवन में कोई हानि नहीं होगा। समझ लिया? So if you are praying, the content on the message for today is, these are the leadership qualities we should maintain. If you pray for some purpose or some prayer request, you should keep this in your mind. As God replies, accept it.
समझे? If he saying no means no. If he saying yes means yes. इसलिए मैंने नया नियम से ही कहा है कि चरित्र को लेकर आकर आप लोगों को समझाया। यूहन्ना आकर यीशु से क्या बोला था? हमारा पीछे नहीं आया इसलिए मास्टर हमने इसको रोका था। यीशु मसीह ने क्या बोला? वो लोग आपका खिलाफ नहीं है, एक्सेप्ट है, डू द मिशन। सो आपको और मुझको और इतना अगवा लोग हमारा भारत में है, सबको बुलाया था परमेश्वर ने, एंड ही हैव गिवन अस अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। हमारे जरूरतों के अनुसार परमेश्वर ने दिया, वो देते हुए जा रहा है। बट इफ देयर इज एनी डिजायर लाइक वांट्स, वी विल फाइनली एंड अप काइंड ऑफ ऐसा वाला जगह। वो जगह का नाम क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ दोज़ हू ग्रेव्स। बहुत चाहत अभी भी दिल के अंदर बातें पड़ा है। प्रार्थना करना है या नहीं करना है पता नहीं, क्योंकि उत्तर तो नहीं, कोई जीवन नहीं है, ऐसा वाला बात है। सच बात है, ग्रेवयार्ड मीन्स कोई जीवन नहीं है। ऐसा वाला संदर्भ में जीने वाला कितना मसीह लोग होगा। और साथ ही साथ ये जो प्रचार है, एक लीडरशिप मीटिंग में लेकर जाकर प्रचार कर सकते थे, क्योंकि हमारे जैसे लोग बहुत, मैंने अभी देखा है, आप लोग भी देखा होगा, हमारे जैसा जवान लोग छोटी मोटी कलिसिया में या कोई ऐसा वाला कलिसिया में जाने के लिए पसंद नहीं करता है। देयर आर टू रीजंस। फर्स्ट वन, लीडर से जो बातें सुनेगा वो बातें हमें क्या करता है? गुस्सा चलाता है। इधर यहोशू को मूसा का बात सुनकर गुस्सा आया और मान लिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, दिस इज माई फॉल्ट, ये मेरा गलती था, इसलिए उन्होंने जाकर उन लोगों को नहीं रोका। समझ लिया? इसलिए मैंने बोला कलिसिया में जाने के लिए जवान लोगों का दो, नहीं जाने के लिए दो रीजन होता है। एक तो हम हमारे चाहत में, हमारा स्टाइल में हम हैं। दूसरी बात है, जब हमको अगवा लोग कुछ अगुवाई देगा, वो मानने के लिए भी हम भी तैयार। इसलिए मैंने बोला द मीनिंग ऑफ द वर्ड लीडरशिप इज नॉट ओनली फॉर द लीडर्स, those who are living a Christian life, they are leader, but we are living a servant leadership, that is there according to Bible. Bible के अनुसार सिर्फ लीडरशिप नहीं है, सर्वेंट लीडरशिप। यीशु मसीह लीडर था, वो क्या भी करता था? एक सर्वेंट का काम भी, इसलिए that is a servant leadership. I hope today's message is very clear. So what are the things we studied today under the title leadership qualities? The first one, if you listen any complaints, don't murmur back to them, you talk to God. मूसा ने जो था मन में पूरा खोल के बताया, गुस्सा है तो भी बताया। परमेश्वर मेरा पिता है, अगर मैं मेरा पिता से ऐसे बातें करने के लिए फ्रीडम नहीं है तो कैसे मैं मेरा बात करेगा? मूसा ने पूरा बताया, साथ ही साथ बोला ये मेरे जरूरत है, उसको करके देना। सेकंड वन, when God speaks to you, accept it as it is. And the third one, when your leader is speaking to you, accept it and follow him. मूसा ने जो बातें यहोशू से बोला, गुस्सा होने का, नाराज होने का, जलन होने की जरूरत नहीं है करके बोला, यहोशू ने एक्सेप्ट किया। इसलिए after the 5 books in the Old Testament, the books come Joshua. In Joshua chapter 24, Joshua very clearly says it. अगर आप लोग कुछ भी करो, मैं और मेरा घराना क्या करूंगा? क्योंकि उतना अच्छा से यहोशू ने इस सेवकाई के बारे में समझ लिया। मैं कितने लोगों को आज तक अगुवाई करके लेके आया, इतना बोलने के बाद वो लोग पीछे मुड़ के गया तो भी मैं ना क्या नहीं करूंगा? परमेश्वर का ऊपर आरोप या ऐसा वाला गलत का एक बात भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा गुरु ने ये किया था। शायद मुझे यहोशू को बहुत अच्छा से पता है, गुरु ने बहुत बार ये किया। वो गुरु का ऊपर परमेश्वर का क्या हुआ? क्रोध भी आया था। इसलिए यहोशू ने बोलता है, मैं और मेरा घराना, मैं वो परमेश्वर को जान लिया हूं, उससे ही आराधना कुछ भी होने पाए मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। क्या हम भी ऐसा मेरे डिसीजन ले सकते हैं कि इस वचन के अनुसार सोच के देखा? ऑफ कोर्स वी हैव मेनी वांट्स इन आवर लाइफ, बट मेनी आर इन प्रेयर। सोचना वो अच्छा चल रहा है, मेरा वांट्स को पूरा करने के लिए नहीं है, मेरा नीड्स को पूरा करने के लिए। आइए आंख बंद करेंगे, आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे।
ये जो वचन आप लोगों के सामने और मेरी कान में आज सुनाई दिया, देयर इज अ पर्पस दैट वी शुड लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस। एक उद्देश्य था इस वचन से हम बहुत बातें सीखने का। सबसे पहले बातें हमने सीखी एक लीडर का, एक अगुवा का क्वालिटी कैसे होना। किसी लोग और कुछ लोगों की वजह से हम नाराज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज परमेश्वर ने ही हमें बुलाया। अगर मैं मेरी जरूरतों का परमेश्वर के सामने गुस्सा में या निराश होकर बताया तो उसकी पूरा करके देगा। ऐसा मतलब प्रार्थना के साथ हम बैठा है, परमेश्वर जब आपने बातें पूरा करके देगा तब उसको जैसा आपने बोला वैसा करने का मन को भी आप मेरे जीवन में देना प्रभु। किसी का ऊपर जलन से, किसी को दबाते हुए नहीं, सबकी बढ़ोतरी के लिए प्रभु मैं काम करने पाए प्रभु। लॉर्ड आई वांट टू वर्क, आई वांट टू डू दिस मिशन and I want to equip many people, Lord. And I know this is the mission that you have given to me. At times I may fall sick. I may fall sick because of the complaints I get from the people. But I will make sure that I will not complain back to them. And I will not murmur back to them. I will talk to you. Because you are able to speak to me, Lord. मैं आपसे ही बात करूंगा प्रभु, क्योंकि आप मुझसे बातें करने के लिए लायक योग्य है प्रभु। आप जैसा मैंने मुझसे बताया, गैदर फॉर मी प्रभु, आपके लिए प्रभु लोगों को इकट्ठा करने के लिए मेरा इस सेवकाई में प्रभु। मैं मेरे पीछे और मेरे नाम को बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता प्रभु, सिर्फ आपकी महिमा के लिए करना चाहता प्रभु। जैसा मैं सोचता हूँ वो झुंड में ही होगा करके आज की वचन साहब मेरा पूरा सोच को बदल के दिया प्रभु। आपको कहाँ पसंद आता है, आप किसका ऊपर पसंद करता है, आप उसको ही उपयोग करेगा। चाहे छोटा होगा बड़ा होगा, छोटी लड़का हो बड़ा लड़का होगा प्रभु, लड़की होगा प्रभु, उसको ही आप मेरे जीवन में लेके आना प्रभु। उसकी अनुसार ही आप मेरे जीवन में काम करना प्रभु। वो यहोशू का जीवन में वो जलन आया था प्रभु, वैसा वाला संदर्भ मेरे जीवन में बिल्कुल नहीं आने पाए प्रभु। अगर आया तो एक अच्छा लीडर के समान मूसा ने उत्तर दिया, और नए नियम में प्रभु आपने अपने चेलों को उत्तर दिया, वैसे ही आप मुझको भी उत्तर देना प्रभु, ताकि हम सब मिलके इस सेवकाई को आगे लेके चलने पाए प्रभु। मेरे सामने हमारा बहुत बड़े अगुवा लोग, बहुत लोग गिरते हुए हम देख रहे हैं प्रभु। लॉर्ड, वी आर सीइंग मेनी ऑफ आवर लीडर्स आर फॉलिंग, बट we want to make this assurance with this verse, Lord, with the word of God. We will not fall and we don't want to fall. Strengthen us, equip us through your word. I submit entire congregation प्रभु, इधर आए हुए सब लोगों को प्रभु मैंने आपके हाथों में सौंपा प्रभु। आपकी इच्छा के अनुसार, आपके आवाज के अनुसार, आपके लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए अगर मेरे जीवन से कुछ बातें उन लोगों को देना है तो देते हुए उनको भी आपकी तरफ लेके आने के लिए प्रभु मुझे मदद करना। लॉर्ड, इफ यू आर आस्किंग मी टू गिव द पोर्शन दैट इज इन मी, गिव मी a heart to give away those things from hallelujah. Once again, I submit each and every one on this meditation in thy hands. In Jesus' mighty name, we do this prayer. Amen. Amen.